نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جلسہ ارشاد ثواب سرزمین کالو گھاٹ حضرت علامہ مولانا رضوان احمد صاحب قبلہ اشرفی علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ زیر سرپرستی و صدارت سیدی سرکار تاج الاولیاء و شہزادہ حضور تاج الاولیاء سید شاہ علامہ مولانا محمد احد الدین معاذ اشرفی الجیلانی مد ظلہ العالی و نورانی فاضل مصر، جملہ علماء اکرام، سامعین، خواتین اسلام، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث هما نارك هما جنتك، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حصول برکت کے لیے ہمارا جانے کائنات، شان کائنات، طیبہ کے شمس دعا بدر الدجا، جن کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح کو درود پڑھتے ہیں، جن کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے شام کو درود پڑھتے ہیں، لو لگا کر گنبد خضرا کے جانب درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیا و لافیات الابدان و شفایا و نور الابصار و ضیایا، صلو علیہ سرمدا دائما ابدا۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیغمبر یک نظر کن سوئما، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، غوث اعظم بمن بے سرو صافا مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکسترہ تو کشتی، بہت کے خواجہ عثمان ہرونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زندہ ہولی قرآن، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں؟ یہ فرمان رب ہے۔ My prophet of Allah, peace be upon him, narrated the hadith about the parents۔ ماں باپ کے بارے میں اللہ کے رسول حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ہما ناروں کا ہما جنت کا، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ۔ وقت مختصر ہے، علماء موجود ہے، انشاءاللہ ہم تمہیں بڑا خوش نصیب 3 پیروں کی زیارت کر لیے گئے، سبحان اللہ۔ اشرف الاولیاء سید شاہ ابو الفتح مجتبی اشرفی الجیلانی علیہ رحمت و رضوان، ایک جون দ্বিতীয় اور سچا خلیفہ سیدی سرکار تاج الاولیاء، তৃতীয় سیدی سرکار تاج الاولیاء شہزادہ سید احد الدین معاذ اشرف صاحب قبلہ، جو آپ کے گاؤں میں تشریف لائے ہیں، کہ سبحان اللہ۔ قسمت کھنو جتہ ناز کری وہ کم ہے، شیخ سماعت کیجئے۔ سند میں رکھتا ہوں، سند ہم سب رکھتے ہیں، محشر میں منہ دکھانے کی میرے جبی پہ خاک ہے، اشرف کے آستانے کی، بولیے سبحان اللہ۔ اور مجھے حقیر نگاہوں سے دیکھنے والوں، ہم اشرفی ہیں، ضرورت نہیں خزانے کی۔ اور سلسلہ مل گیا، مولی صاحب آپ لوگ بولے مولی صاحب اللہ شیر سوکتے پڑ جی، کیوں جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، سلسلہ مل گیا، اشرفی ہو گئے، پیر ایسا ملا جنتی ہو گئے۔ تو شیر سماعت کیجیے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر
کی تصویر سینے میں موجود ہے. کس کی تصویر؟ نبی کی. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. My Prophet Muhammad, peace be upon him, narrated the hadith about this month and Ramzan. شب برات کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا شعبان و شہر و رمضان و شہر اللہ. شب برات میرا مہینہ ہے, رمضان خدا کا مہینہ ہے. صوفیاء کرام کا قول ہے only 5 words present in the شعبان. لفظ شعبان میں 5 حروف ہیں. علماء موجود ہے. فاسٹ آف آل بریشین. بریشین سے مراد شرافت بزرگی, عین سے مراد علو برتری, بے سے مراد پر بھلائی اور احسان. بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں. اور الف سے مراد الفت. الفت مانے what is the meaning of الفت؟ الفت کا مانے محبت, প্রেম, ভালোবাসা. যার যেই নবী আমার জন্য নিজের উম্মতের জন্য কাল ময়দানে মাহশারের মাঠে আমার সবার জন্য ওই ময়দানের মাহশারের মাঠে আমরা সবাই উম্মতের জন্য আবে কৌসর পিলাবে. কহিए সুবহান अल्लाह. हमें बंगला नहीं आती है, हजरत बंगला बहुत पढ़ते हैं लेकिन हम धीरे धीरे सीखते हैं. मेरे दोस्त ज्यादा तुल तवील नहीं, धीरे से समाप्त कीजिए. मैं कब्र, इस कब्रिस्तान को फॉलो कीजिए. इसलिए फॉलो द इस्लाम, रीड द इस्लाम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन? इस्लाम क्या है? अरे रब ने फरमाया ए महबूबा फरमा दीजिए, कुल ए महबूबा फरमा दीजिए, क्या जानने वाले ना जानने वाले दोनों बराबर हैं? ऐसा नहीं है. लाइट यानी रोशनी और अंधेरा बराबर है नहीं. इसीलिए मेरे आका ने फरमाया ये इल्म दीन के हुसूल करना, एजुकेशन ऑफ द रिलीजियन, इट इज कंपल्सरी फॉर द एवरी पर्सन ऑफ द होली कुरान, ऑफ द पास्ट ऑफ स्पीच. मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सबसे पहले इल्म हासिल करना है वो कुरान का तालीम है. वो कुरान का तालीम आप कैसे हासिल कर सकते हैं? ये उलमा के पास जाकर के. इसीलिए मैंने कहा बेसिक एजुकेशन इट इज कंपल्सरी. बुनियादी तालीम क्या है? बगदादी कायदा. ये सुभान अल्लाह. बगदादी कायदा पढ़ो, उसके बाद नूरानी कायदा अम्मा पढ़ा, कुरान शरीफ, उसके बाद फारसी. एक के बाद जब ये सारी किताबें पढ़ लोगे तब पटवा शरीफ में आपका एडमिशन होगा. मेरे दोस्त बताना ये चाहता हूँ ये कब्रिस्तान को फॉलो कीजिए. आज माँ बापों की याद करने के लिए ये पूरे गांव वाले तन मन धन की कुर्बानी पेश करके हुजूर ताजुल औलिया का सच्चा जानशी माज़ मिल्लत को बुलाए हैं, दावत किया है. हम लोग तो ऐसे हैं मेरे दोस्त, सखी के दर पर तलब की कहाँ जरूरत. बोलिए सुभान अल्लाह. तलब से पहले ही दामन में डाल देते हैं. अशरफी तू नाज कर अपने अशरफ पर, कौन पाता है खानदान ऐसा. समाप्त कीजिए. मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद को तुम मेरे आ जाना या रसूल अल्लाह. माँ बाप भाई बिरादर सब कोई साथ छोड़ दिए, लेकिन साथ देने वाला कब्र की पहली रात में वो शम्स दुहा है, बद्रुल गजा है, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है जिसके बारे में रसूल पाक के बारे में रब ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन. ऐ महबूब मैंने आपको नहीं भेजा मगर दोनों आलम के लिए रहमत बना करके. ये सुभान अल्लाह. हजरत कौन वाकया सुनिए आप. ईमान ताज़ा की. इल्म की अहमियत क्या है? इल्म ये लाजवाब दौलत है जिसको कोई डाका जनी रहजनी नहीं कर सकता है. इल्म को कोई चुरा नहीं सकता है. मालो दौलत चुरा सकता है, खत्म हो सकता है, लेकिन इल्म खत्म नहीं होगा क्योंकि ये इल्म है. इल्म के बारे में मेरे आका ने फरमाया उतलुबुल इल्मा
کرو اگرچہ ملک چین جانا پڑے. کہیے سبحان اللہ. تمہیں چین اور جاپان جبانی ہو گئے. اپنے گاؤں کا مدرسہ ہے, مدرسہ تمہیں نہیں سوچے جائے کہ بولے صاحب بچے کو ہم بھیج دیا بغدادی قاعدہ دے کر کے. نہیں, یہ مدرسہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے. آل مینس فار دس مدرسہ, یہ مدرسہ سب آدمی کے لیے ہے. ہر مرد نوجوان بوڑھا بزرگ جا کر کے علماء کے پاس جائے, وضو کا طریقہ سیکھ لے, غسل کا طریقہ سیکھ لے, نماز پڑھنے کا ڈھنگ سیکھ لے, التحیات کہاں پڑھنا ہے, درود ابراہیم کب پڑھنا ہے, دعائے معصورہ کہاں پڑھتی ہے, دعائے قنوت کس نماز میں پڑھتی ہے, نماز کا طریقہ سیکھ لیجئے. یہ علماء کی بارگاہ میں آئیے اور آپ ان علماء کی قدر کیجئے. جب علماء کی قدر کریں گے, علماء سے محبت کریں گے, انشاءاللہ اس کا فیضان تمہیں دنیا میں ملے گا, عقبہ میں ملے گا. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. علامہ روم বড় আলিম, খুব বড় বিখ্যাত আলিম. হ্যাঁ, ওই টাইমত মাদ্রাসা মসজিদ ওরকম ভালো সুন্দরভাবে নিয়েছে. একটা গাছের হাঁটা তোমার পড়া আছে, দিনই তালিম দিয়েছে, কোরআন হাদিস তাফসীর এসব পড়া रहे हैं, পড়া আছে. इति दरमियान पढ़ा तालिबे इल्म एक फटा पुराना कपड़ा, पोसीदा कपड़ा वाला, गर्दालूद कपड़ा, मैंने धुला धुली लगा हुआ है, चेहरे में गर्दालूद लगा हुआ है, मुसाफिर सफर की जो है उसके ऊपर आसार जाहिर है. गए पढ़ा रहे थे, क्या है ये, क्या कर रहे हो, कहा कि ये आपकी समझ में नहीं आया. क्या बोले? मौलाना रूम बोले. क्या बोले? वो हस्ती जो बुजुर्ग सिफत है वो बहुत बड़े आलिम थे. अब आप इसकी समझ इसको समझ नहीं पाएंगे, चले गए. फिर एक दिन, दो दिन, तीन दिन के बाद वो इसे तालीम दे रहे थे. एक दिन अखी हो कोई नहीं और वो मौलाना रूम कहीं चले गए. ठीक है, अब मौलाना रूम जब चले गया, वो आने वाला कौन था? शम्स तबरेज. कहिए सुभान अल्लाह. वो बुजुर्ग हस्ती इतना आलिम, बहुत बड़ा आलिम था, वली कामिल था, मंसूब सिफत का इंसान था. की बोले वो बस और किताब लाग उठा है ना, एक बार तालाब में फेंक. बताइए, किताब को उठा करके तालाब में डाल दिया. डाल देने के बाद वो वही खड़े हैं, इधर से यार देख रहे बाप किताब ला उठा फेंक दिया. कौन है? तो ला किताब को फेंक दिया. बड़ी मेरी मेहनत थी, ये मेहनत मशक्कत सबको आप बर्बाद कर दिए, पानी में डाल दिए, बहा दिए. पानी में किताब ला बिछोला पड़ा जी. तो बोल रहे हैं, वो फरमा रहे हैं बुजुर्ग, काहे घबरा रहे हो, तुम्हारे पास ऐसा इल्म है जो बह जाए, जो डूब जाए, फना हो जाए, खत्म हो जाए. इल्म खेलों को मिली वहां से कोई थी. इल्म के लिए आप जो है समंदर में डाल दिया, तालाब में डाल दिया, तो रोने लगे क्यों आप? इल्म का तो खत्म हो गया, खेलों को मिली वहां से कोई थी. तो कहा कि हुजूर मेहरबानी होगी. तब हजरत ने फरमाया, मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी नबूद. मौलवी उस वक्त तक मौलवी नहीं हो सकता जब तक शम्स तबरेज़ का गुलाम ना बन जाए. कि सुभान अल्लाह. आलिम दीन उस्ताद शागिर्द, उस वक्त तक शागिर्द को इल्म का फैज़ान नहीं मिलेगा जब तक उस्ताद की अदब व एहतराम नहीं करेगा. कहिए सुभान अल्लाह. मामूली बात नहीं है मेरे दोस्त. शेख सादी फरमाते हैं, एक मन इल्म ना 10 मन अकल मायत. एक मन इल्मेर तने 10 मन अकलेर जरूरत है. और फिर मेरे आका ने फरमाया, अल इल्म नूर, इल्म नूर है और नूर वही समाएगा जिसका दिल साफ है. कहिए सुभान अल्लाह. आज हम लोगों के बंगाल में सबसे ज्यादा प्रोग्राम होता है. रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी फरमाते हैं कि बंगाली लोग जो झूम झूम करके दुरूद पढ़ते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है. कहिए सुभान अल्लाह. और सर्वे किया गया, पता लगाया गया, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर अल्लाह रसूल का जिक्र होता है, जलसा जुलूस होता है, वो बंगाल है. कहिए सुभान अल्लाह. लेकिन मेरे दोस्त, लेकिन आसर के नहीं होते, इसीलिए सूद खाओगे, टिकट काटोगे, हरामखोरी करोगे, जमीन किसम करोगे, अपने यतीम बच्चों का रुपया खा लोगे, बहन का हक छीन के खाओगे, बीवी का महर अदा नहीं करोगे. हाजिला हज करवा दिए, बीवी मोहर नहीं अदा करो, चले गया हज करवा. सारे हुकूक दुनिया का अदा करो, उसके बाद जाओ. कहिए सुभान अल्लाह. मेरे दोस्त, आज हमारे समाज में, सोसाइटी में, गांव में, विलेज में बहुत सारी बुराइयां हैं. किन किन बुराइयों को मैं गिनूं? आज हमारी माँ बहनें रामगढ़, इस्लामपुर, सिलीगुड़ी खुद शॉपिंग करने जाती है. अभी रमजान का महीना आ रहा है, 15 रमजान के बाद
लीजिए रामगंज में, इस्लामपुर में, सिल्लीगुड़ी में, ये माँ बहनों को हमने पावर दे दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेड इन द होली कुरान, अल्लाह कुरान में फरमाता है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द को औरत पर अल्लाह ने हाकिम बनाया। लेकिन आज हम महकूम है गई, वो हाकिम है, वो आप पर हुकूमत कर रही है। मेरे दोस्त वो दिन दूर नहीं है। अल्लाह ने फिर कुरान में दूसरी आयत में फरमाया वला तहनु वला तहज़नु व अंतुम अल-अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन, घबराओ नहीं, गमज़दा ना हो। शर्त ये है कि तुम मुकम्मल मोमिन बन जाओ, तुम ही कामयाब हो जाओगे। मेरे दोस्त सरकार की आमद का अंदाज ही निराला है। मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। तो मैं बात ये कह रहा था, अल्लामा तबरेज़ अलैहिर्रहमा फरमाते हैं और हमारे शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हाशमी मियां घोड़ा भाई कोच आगुर का दोनों जतला आलिम दस्तरबंदी लिखी, दस्तरबंदी लेहले किसी बुजुर्ग से की बारगाह में सोहबत में बैठते थे। कहिए सुभान अल्लाह। सोहबत पड़ती फिर साहब दामन धोए थी। तो उस जमाने में फितना फसाद नहीं था, हर उलमा इत्तेफाक के साथ जिंदगी गुजारा था। आला हज़रत हज़रत बरेलवी भी आले रसूल से मोहब्बत करके बता दिया और शेर कहा या हबीबी या रसूलुल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये रोशनी गुंबदे खजरा से फूटती है, वो रोशनी फूटती हुई कहा गौसे आज़म के मज़ार पर, वहां से वो रोशनी निकलती हुई कहा ख्वाजाए अजमीर के रोज़े पर, वो रोशनी निकल करके कहा कचौचा शरीफ मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के दरबार में, वो रोशनी फूटती हुई कहा शेख सिराजुद्दीन आखिए पाक के दरबार में, वो रोशनी फूटती हुई कहा पन्नवा शरीफ शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी की बारगाह में, वो रोशनी फूटती हुई कहा आला हजरत के रोजे पर। वो रोशनी मदीना में सेंटर है और वहां से रोशनी पूरी दुनिया में फैलती है। कहिए सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे दोस्त आज हम तुम्हारा देखो हालो, नमाज रोजा नहीं हमारा, इसीलिए मैं बाहर कहता हूँ, बारह कहता हूँ, हक ने पैदा किया बंदगी के लिए। अल्लाह हमें पैदा को ये इबादत करे, दोनों आलम बने हैं। What is the meaning of आलम? आलम का माने दुनिया। ये सुभान अल्लाह। हक ने पैदा किया बंदगी के लिए, दोनों आलम बने हैं नबी के लिए। मौलाना कलीम बारह कहते हैं जिंदगी बराए बंदगी, बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी अल्लाह इसलिए दिया कि तुम इबादत करो। आज हम लोग कीमती झंडा पास कर दीजिए, गया वक्त फिलहाल आता नहीं। वक्त का कदर करो, वक्त को गनीमत जानो, जो वक्त दे दिया गया है। जब तुम फजर पढ़ लो अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, मौला फजर नमाज भी पढ़े लो, मुझ जोहर तक जिंदा रखे ताकि मैं जोहर 12 रकात नमाज पढ़े लो। कहिए सुभान अल्लाह। अब जब 12 रकात नमाज जोहर पढ़े लो, फिर वही दुआ लगाई दे मौला जोहर पढ़े लो, अब आसर खुदा तो मुझ जिंदा रखे, जिंदगी दे दे। जिंदा रखने वाला खुदा है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल की आफात जिया करते हैं। आसर नमाज कंप्लीट करा ली लो, वर बादत ती फिर वही कह दिया अल्लाह मी तो 3 वक्त नमाज पढ़नू फजर जोहर असर, लेकिन मगरिब तक मुझ जिंदा रखे। जब मगरिब नमाज पढ़े लीलो एशार ताने वही दुआ लगाई ले मौला एशार नमाज तक मुझ जिंदा रखे। जब एशार नमाज पढ़े लीलो वही वाला बिस्ना करो, जब तुम सुतपा जाबो कलमा शरीफ पढ़े न मैं सो जाऊं या मुस्ताफा कहते कहते मेरी आँख खुले सल्ले अला कहते कहते। ज़मीन मैला नहीं होता, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तो शेखुल इस्लाम फरमाते हैं अगर कर उलमाला आलिम दिल है ने नखवत इल्मी को, तकब्बुर, कीना, गुरूर को झाड़ाने के लिए, उसको हटाने के लिए, दिल से निकालने के लिए, कीना, बुग़्ज़, हसद को निकालने के लिए किसी वली का दामन थामते थे। अब जब वलायत के वली के दामन से वाबिस्ता हो जाते थे तो
तो फिर वो बनता था क्या? मोदी बनता था। अब जब वो दीन की तबलीग करते थे तो एक बनता है मौलाना मोइन बनता है, मौलाना करीम बनता है। इसीलिए ये लोग पहले अपने नफ्स को मार करके आज बुलंदी में पहुंच गए कि ये सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे दोस्त पहले नफ्स को पहचानो। मेरे आका ने फरमाया मैं आरफ़ नफ्सहु फ़क़द आरफ़ रब्बहु। जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। आज तो हमार निजर नफ्स चिनबानी पानो, आज हमार दिल चिनबानी पानो, आज हमार गुनाह कम करते थी ना जाए दूध और पानी मिला है ना बेचे थी के। लेकिन मेरे दोस्त वो दिन दूर नहीं है। इसी तरह से हमें भी सुना दिया जाएगा। लाखों मुर्दे सो रहे हैं जब से बनी है दुनिया, लाखों करोड़ों आए बाकी रहा न कोई, सब मिट्टी में समाए। ये गुरूर, ये तकब्बुर, ये मानो सर, ये दौलत, ये ताकत, ये कुव्वत, ये जिस्म का निखार, ये चेहरे का निखार, ये जस्म, ये कपड़ा लाता, ये जितना आपके पास है, ये बैंक बैलेंस, ये कुछ जाने वाला नहीं है मेरे दोस्त। आपके साथ जाएगा। मैं आया था तू खाली हाथ, लेकिन जाना है आपको आमाले सालिहा के साथ। कहिए सुभान अल्लाह। वो क्या है? नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, तस्बीह व तहलील है, सिला रहमी है, अपने से बड़ों की इज्जत है, छोटों पर शफ़क़त है, उलमा से मोहब्बत है, पिराने अज़ाम से मोहब्बत है, माँ बाप की मोहब्बत है। मेरे आका ने फरमाया तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम। तो साहबिला सवाल बोले हुजूर पूजा पाना नहीं, रसूल पाक ने तशरीफ फरमा दिया तोर माँ बाप छिल हो हुजूर, तोर माँ बाप एक पाए ने खिदमत करा लो, राजी करे लो, खिदमत करे है तो तुम्हारे लिए जन्नत है। बोले सुभान अल्लाह। अतियत्ता लोग छे जे व्यक्ति को हमार माँ बाप पाए ना, हमार माँ बाप खिदमत नहीं करे, वह कुछ करे नहीं, लेकिन वह तकलीफ दिया, कष्ट दिया, उसके लिए जहन्नम है। मेरे आका ने फरमाया दुनिया में सबसे बड़ा मुर्शिद तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप है। कहिए सुभान अल्लाह। मायर दिले ते बेटा कखनो दियो ना, कखनो दियो ना, मायर मुखेर हासी अल्लाहर अरशेर कुर्सी। आज माँ को तकलीफ दिया जा रहा है। एक माँ है जो 10 बच्चे को परवरिश करती है, लेकिन 10 बच्चा एक माँ और बाप को परवरिश नहीं कर पा रहा है। आज हालात ऐसे हैं मेरे दोस्त, माँ बाप कष्ट दिए जे जानो जिंदगी तुम्हार नमाज रोजा कबूल होवे नहीं। जो तो बड़ा आलिम उलमा मुफ्ती लोग को फतवा ले लो। सबसे पहले माँ बाप को राजी करो और माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत रसूल से करना है। कहिए सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे दोस्त शोभे बारातेर महीना এটা এই শবে বারাতের মহিনা লাশ আসারা চলছে, ওয়ার বাদত রমজানের মহিনা চলে আসবে। যেই রমজানের পবিত্র মাস চলে আসতেছে আমার ভিতরে সেই রহমত বরকত মাগফিরাত নিয়ে চলে আসছে। আমরা সবাই ভাগ্যবান। আল্লাহ যদি আমরা সবাই জিন্দেগি দিবে আল্লাহ তাআলা সেই রোজার মাসের ইনশাআল্লাহ রোজা রাখবো। তারাবি নামাজ माँ बहनों पर भी तरावी की नमाज है। कहिए सुभान अल्लाह। सिर्फ माँ बहनों पर दिगर नमाज, 5 वक्त नमाज और तरावी की नमाज। जुमा नहीं है, ईद नहीं है, बकरीद नहीं है, ठीक है, जनाजा नहीं है, इनके लिए छूट है, लेकिन हम पर सारी नमाजें और माँ बहनें पढ़ सकती है नमाज, तहज्जुद की नमाज, चाश की नमाज, ये सब पढ़ सकती है। लेकिन इन लोगों के लिए नमाज रमजान में तरावी 20 रकात नमाज मामुल्ला को पूर्व होবে। मेरे दोस्त रमजान চলো হচ্ছে, রমজান মাসের পবিত্র মাসের ইস্তেকবাল করবা হবে, ওয়েলকাম करवा होवे। हजरत अबू हुरैरा से मरवी है जब रमजान का चांद निकलता है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तमाम शयातीनों को, शैतानों को जंजीरों में बांध दिया जाता है। ठीक है, और जन्नतेर 8টা दरवाजा खोले দেওয়ানো হলো, জাহান্নামের 7টি দরওয়াজা বন্ধ থাকলো। कहिए सुभान अल्लाह। ये रमजान की फजीलत है मेरे दोस्त। इसीलिए मेरे दोस्त तकरीर जतान सुनो और बड़ो बाप को सकीरे भूल ना जाना जाना